हाय। हमारे आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे लीड कोड सीक्वल 50 स्टडी प्लान का 46 क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन का नाम है डिलीट डुप्लीकेट ईमेल्स। तो चलिए इस प्रॉब्लम को समझते हैं। तो वी हैव बीन गिवन अ टेबल कॉल्ड पर्सन और इसका स्कीमा है आईडी एंड ईमेल। एंड इन दिस टेबल आईडी इज द प्राइमरी की विच मीन्स कॉलम विद यूनिक वैल्यूज। ओके, एंड ईच रो ऑफ दिस टेबल कंटेन्स एन ईमेल। द emails will not contain uppercase letters. Okay, so ये हमें दिया गया है। So what we have to do here is write a solution to delete all duplicate emails, keeping only one unique email with the smallest ID. For SQL users, please note that you are supposed to write a delete statement and not a select statement, जो हमने पहले डिस्कस कर लिया, that it's a delete statement. Okay, and for pandas we are not doing in pandas, but if you are trying you can read this. Okay, and after running your script, the answer shown in the person table, the driver will first compile and run your piece of code and then show the percent table. The final order of the percent table does not matter. The result format is the in the following example. तो नाउ इफ़ यू सी हमें डुप्लीकेट ईमेल आईडीज इसमें से डिलीट करनी है एंड ओनली जो स्मॉलेस्ट आईडी वाली ईमेल आईडी होगी वो रखनी है। सो एग्जांपल से समझते हैं, जैसे यहाँ पे दिस इज़ द डुप्लीकेट ईमेल, ओके, john@example.com। तो इसमें हमें आउटपुट में, क्योंकि आईडी इसकी फर्स्ट रो की स्मॉल है, तो हमें आउटपुट में ये रखनी है एंड दिस वी हैव टू डिलीट। ओके, तो यू कैन सी हेयर आउटपुट ऑल्सो, यहाँ पे फर्स्ट रो को रिटेन किया है और जो थर्ड रो थी विद ID 3 विच वॉज ग्रेटर उसको डिलीट कर दिया है। ठीक है, तो यही हमें सीक्वल सॉल्यूशन में लिखना है। तो चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो सिंस यहाँ पे हमें डुप्लीकेट वैल्यूज़ डिलीट करनी है और हमें एक्चुअली वी कैन यूज़ डिस्टिंक्ट ऑल्सो, बट क्योंकि हमें आईडी के अकॉर्डिंग आईडी के ऑर्डर में डिलीट करनी है, जिसकी भी आईडी ज़्यादा होगी उसी को। तो व्हाट वी कैन डू हेयर इज़ वी कैन यूज़ रैंक विंडो फंक्शन एंड वी कैन असाइन रैंक। तो जो भी डुप्लीकेट आईडी होंगी उनको मतलब डुप्लीकेट ईमेल आईडीज़ होंगी उनको सेम रैंक असाइन होगी, और वहाँ पे हम जो फर्स्ट रैंक है सिर्फ उसको रिटेन करेंगे। ओके, सो क्या करेंगे, पहले हम let us type select id email and then we need to assign a rank, so we will use dense rank क्योंकि यहाँ पे duplicate हो सकती है, so we don't want to skip any rank। okay, actually that doesn't matter, we can use rank also। and इसका condition होगा partition by email, okay, and order by id in the ascending order as rank। ठीक है, so this we have to do from the percent table। So this is not the final solution, but let's execute and see what we are getting। Okay, but in the output we won't get what we have written. The driver code will execute our code and will return the final table, final percent table। okay, तो अभी हम देख नहीं सकते, but if you understand this, यहाँ पे एक dense rank का कॉलम ऐड हो जाएगा and this will get rank 1 and this will get rank 2। okay, and this will get rank 1 because we have partitioned by email। ओके, तो दिस विल असाइन द रैंक। अब हमें क्या करना है कि वी नीड टू राइट द डिलीट स्टेटमेंट। दिस इज द सिलेक्ट स्टेटमेंट बट वी नीड टू राइट द डिलीट स्टेटमेंट। तो इसको सब क्वेरी में डाल देते हैं एंड लेट्स गिव इट एलियास ए। ओके, एंड नाउ वी नीड टू डिलीट, राइट द डिलीट स्टेटमेंट। तो डिलीट का सिंटैक्स होता है डिलीट। ओके, एंड हेयर वी डोंट write any column because this is not a column delete, this will completely delete the records। okay, so we will mention the table name जहाँ से delete करना है, delete from person, and then we will write a where condition। so you should never write or execute a delete query without a where clause। okay, this is the key rule or thumb rule। तो यहाँ पे हमें क्या delete करना है, where id, since id is the primary key, so we will select id in and we will get distinct IDs। so distinct ID from this subquery। okay, and उसका हमारा क्या कंडीशन होगा, where rank is greater than 1। so we could have used having also but we are using simple where clause। तो यहाँ पे rank is having 1। ओके, यहाँ पे एक सिंटेक्स एरर हो गया था, वी हैव टू राइट सिलेक्ट डिस्टिंक्ट आईडी फ्रॉम। तो अभी इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं।
तो नाउ यू कैन सी हमारा जो आउटपुट है वो एक्सपेक्टेड आउटपुट से मैच हो रहा है, मतलब जो डुप्लीकेट ईमेल आईडी थी विद आईडी 3 विच वाज ऑफ कोर्स ग्रेटर देन आईडी 1, वो डिलीट हो गई है एंड वी हैव द फाइनल पर्सन टेबल। तो आई होप आपको इसका सीक्वल सॉल्यूशन समझ आया होगा एंड यू गॉट द आइडिया ऑफ हाउ द सिंटैक्स ऑफ डिलीट स्टेटमेंट लुक्स लाइक और उसको कैसे एग्जीक्यूट करना होता है। तो चलिए अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं स्काला स्पार्क में। तो एज ऑलवेज हमारे पास हमारा स्पार्क सेशन रेडी है और जो पर्सन टेबल का डेटा है उसको मैंने परसेंट डी एफ में यहाँ पे स्टोर भी करके रख लिया है। बट द प्रॉब्लम हेयर इज सिंस वी वर एग्जीक्यूटिंग दिस ऑन लीड कोड, वहाँ पे ऑलरेडी ड्राइवर कोड एंड डेटाबेस सब कुछ सेटअप था, बट हमारे पास हम डिलीट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं। सो व्हाट वी विल डू इज़ हेयर वी विल राइट सेलेक्ट स्टेटमेंट ओनली, बट उसमें जो हमारा फाइनल है मतलब दैट कॉलम वी विल फिल्टर आउट। ओके, सो विच मीन्स इट्स लाइक डिलीटिंग ओनली। तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट है उसका वो लीड कोड के फाइनल रिजल्ट से मैच होगा। So let us see how we are doing it. We will store it in the result df only. और अब यहाँ पे हमें क्या करना है, we will use the percent df और इसमें हम again rank यूज़ करेंगे जैसा हमने SQL solution में किया था, but this time we are not writing Windows spec separately. We can directly write it here क्योंकि हमें एक ही बार यूज़ करना है। So we will use dense rank, okay, and over should be window.partition by email and order by id. This is what we had in our SQL solution. अब इसमें से हमें क्या करना है कि जो भी रैंक 1 वाले आईडीज हैं वही बस वही सिलेक्ट करने हैं। So we will say rank is equals to 1 and then select id and email. तो दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन। इसको कंसोल पे प्रिंट करके देखते हैं आर वी गेटिंग द एक्सपेक्टेड आउटपुट। ओके, यस वी आर गेटिंग ID1 एंड ID2 एंड जो ID3 था हमारे पास वो ड्रॉप हो गया है। सो दिस इज इक्विवेलेंट टू अ डिलीट स्टेटमेंट ओनली। तो आई होप आपको ये स्काला स्पार्क का सॉल्यूशन भी समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स और एनी सजेशन प्लीज़ राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। इस वीडियो को, इस सीरीज़ को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।